प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के 10th चैप्टर की एक्सरसाइज 10.2 के बाकी बचे हुए सवाल हल करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, ए ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. A triangle ABC is drawn. एक ट्रायंगल ABC बनाया हुआ है। कैसा है वो? सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, जो एक सर्कल के बाहर बना हुआ है, उस सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। सच दैट द सेगमेंट्स BD and DC, BD and DC are divided in the length 6 centimeter and 8 centimeter respectively. Find the sides AB and AC. तो जो बाकी की दो साइड बची हुई हैं AB और AC, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब इसमें हमें क्या क्या गिवन है? ABC is a triangle drawn to circumscribe a circle with the center O and radius 4. हमें दिख रहा है ABC is a triangle. ABC is a triangle. Circumscribe a circle of radius 4 centimeter and center O. Also, BC is equal to 14 BD plus DC, where BD is given 6 centimeter and DC is given 8 centimeter. The circle touches the sides of triangle ABC. BC at D, AC at F and AB at E. जो सर्कल है वो ट्रायंगल की साइड्स को DEF पर टच कर रहा है, BC को D पर टच कर रहा है और AC को F पर टच कर रहा है और AB को E पर टच कर रहा है। We know that lengths of tangents from a point outside the circle are equal in lengths. अब देखिए, सर्कल के बाहर 3 पॉइंट हैं A, B और C. A से 2 टेंजेंट्स दिखाई दे रहे हैं AE और AF. B से 2 टेंजेंट दिखाई दे रही हैं BE और BD और C से 2 टेंजेंट दिखाई दे रही हैं CD और CF. So we have BD is equal to BE is equal to 6 centimeter. CD is equal to CF is equal to 8 centimeter. Let AE is equal to AF x centimeter. So we have AB किसके बराबर है? AE प्लस BE, AE प्लस BE इज इक्वल टू x प्लस 6. AE हमने x पोज किया है और BE हमारे पास 6 है. AC इज इक्वल टू AF प्लस FC इज इक्वल टू x प्लस 8 and BC is equal to BD plus DC is equal to
6 + 8 इज 14। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे बाय हेरोन फार्मूला। हेरोन फार्मूला से हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. S is equal to AB plus BC plus CA by 2. So this is equal to AB. AB कितना है मेरे पास? X plus 8. X plus 8 plus X plus 6 plus X plus 8 plus 14 by 2, which is equal to X plus X 2X plus 6 plus 8 plus 14 28 by 2, taking 2 common, x plus 14 by 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास s आ गया x plus 14। s minus ab is equal to x plus 14 minus x minus 6, x कट जाएगा, that is 8, s minus ac, x plus 14 minus x minus 8, x कट जाएगा, 14 minus 8 is equal to 6, s minus bc, which is equal to x plus 14 minus 14, 14 से 14 कट जाएगा, that is x. Area of triangle ABC under root, फार्मूला है s minus ab, s minus ac, s minus bc. This is equal to s. What is s? x plus 14 into s minus ab 8, s minus ac 6, and s minus bc x is equal to under root 8 into 6, 48, 48 x को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 14x. इट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मुझे दिखाई क्या दे रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, अब देखिए हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं, BO, OA, OC. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to area of triangle BOC plus area of triangle AOC plus area of triangle AOB. This is equal to, अब area of triangle BOC, half base into height, 1 by 2 into OD into BC. Similarly, area of triangle AOC, half OF into इसका बेस AC है, इसी तरह नेक्स्ट 1 by 2 OE into AB. अब इनकी वैल्यूज हम रख देते हैं, 1 by 2 OD is 4, BC is 14, 1 by 2 OF is 4, AC is equal to, I have AC is equal to x plus 8 plus 1 by 2 into 4 into x plus 6. So this is equal to, इसको हम काट देते हैं, 2 2 जा 4, 28 plus 2 into x plus 8 plus 2 into
x plus 6. This is equal to 28 plus 2x plus 16 plus 2x plus 12, and this is equal to 2x plus 2x 4x, or 28 plus 16 plus 12 56. टेकिंग 2 कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा 2x plus 28. अब इन दोनों एरियाज को हम इक्वल रख देते हैं. सो वी गेट अंडर रूट 48 into x square plus 14x is equal to 2 into 28 plus 2x by squaring on both the side. Squaring on both the sides. देखो स्केयर करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा. 48 एक्स स्केयर प्लस 14x. अब हम इसका स्केयर करेंगे, सो इट इज 4, और इसका हम स्केयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या रह जाएगा 2x प्लस 28 स्केयर. ये 28 है हमारे पास. सो 48 एक्स स्क्वायर प्लस 14x. अब इसमें से देखिए 2 को कॉमन ले सकते हैं हम, और उसका स्क्वायर बाहर 4 बन के आ जाएगा. तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 एक्स प्लस 14 होल स्क्वायर. अब देखिए x प्लस 14 एक्स स्क्वायर, x प्लस 14 whole square. So this is equal to 48 x square plus 14x. ये जो 16 है इसको हम यहाँ ले आते हैं, और is equal to x plus 14 whole square. इससे ये कट जाएगा. 48 को हम 16 से कट करेंगे तो 3x square plus 14x. अब इसको हम होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर के तरीके से खोल लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 14. सो दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 42x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x. अब इन सब को हम इस तरफ ले आते हैं. सो इट इज 3x स्क्वायर plus 42x minus x square minus 196 minus 28x is equal to 0. 3x square minus x square इसको हम घटा लेते हैं. It is 2x square. 42x minus 28x, it is 42 minus 28x, so it is 14x minus 196 is equal to 0. Taking 2 common, x square plus 7x minus 2 9 जा 18, 2 8 जा 16. अब ये 2 उधर जाके 0 बन जाएगा, तो मेरे पास रह जाएगा x square plus 7x minus 98 is equal to 0. अब हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. x square plus 14x minus 7x minus 98 is equal to 0. Taking x common, x into x plus 14 minus 7 common, x plus 14 is equal to 0. It is x plus 14 x minus 7 is equal to 0. I have two parts. X plus 14 is equal to 0. X minus 7 is equal to 0. X is equal to minus 14. X is equal to 7. तो but x cannot be negative. X cannot be negative. So x is equal to 7. हमें दोनों साइड बतानी थी. ए बी
ए बी हमारे पास थी x प्लस 6, इट इज 7 प्लस 6 13, और हमारे पास ए सी x प्लस 8, it is 7 plus 8 is equal to 15. So the sides are, the sides of triangle ABC are AB is equal to 13 and AC is equal to 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल के बाहर बना हुआ है, उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो सेंटर के साथ सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाती हैं, यानी कि अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 होगा। जो उस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स हैं सेंटर के साथ वो जो एंगल बनाती हैं, अपोजिट साइड्स के जो एंगल्स हैं सेंटर के साथ उनका सम 180 हमें प्रूव करना है। अब इसमें हमें गिवन क्या है, एक सर्कल है ओ है और एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी जो सर्कमस्क्राइब किया हुआ है हमने उस सर्कल के बाहर। सो व्हाट वी हैव गिवन, लेट ए सर्कल with center O which touches the sides of a circumscribing circle A B C D as A B at P, B C at Q, C D at R and A D at S। A B को P पर, B C को Q पर, C D को R पर, A D को S पर टच कर रहा है। We have to prove angle AOB प्लस एंगल इसके अपोजिट है COD 180 एंड एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180। ये हमें प्रूव करना है। We know that tangents drawn from a point outside the circle subtend equal angles at the center। अब देखिए ये ए पॉइंट से हमें दो टेंजेंट दिखाई दे रही हैं, AP और AS, सेंटर के साथ ये एंगल 1 और 2 बना रही हैं। सो वी हैव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 is equal to angle 6 and angle 7 is equal to angle 8. Also we have, ये सभी सर्कल बना रहे हैं तो इनका सम 360 होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3
plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8 is equal to 360. Sum of angles around a point is 360. Sum of angles around a point is 360. Angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8 is equal to 360. And angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4, angle 5 is equal to angle 6, angle 7 is equal to angle 8. तो अब हम इनकी जगह ये सब्सटीट्यूट कर देते हैं. 1 की जगह हम 2 रख देते हैं और 4 की जगह हम 3 रख देते हैं, 6 की जगह हम 7 रख देते हैं. ये हम इस तरह से इसको कर लेते हैं. तो देखिए 1 + 1, 1 की जगह हम 2 रख लेते हैं. तो 2 + 2, 2 + 2 और 4 की जगह हम 3 रख लेते हैं. तो 3 एज इट इज 3. 5 + 6, 5 + 6, 5 की जगह हम 6 सब्सटीट्यूट कर लेते हैं प्लस ये हो गया मेरे पास और 7 एज इट इज और 8 की जगह 7, 360. अब ये हो गया 2 × 2, 2 × 3, 2 × 6 and 2 × 7 is equal to 360. Taking 2 common, 2 + 3 + 6 + 7 is equal to 360. So 2 + 3 + 6 + 7 is equal to 360/2, 180. अब 2 + 3 मिलके बना रहे हैं एंगल AOB और 6 + 7 मिलके बना रहे हैं एंगल COD. 180 हो गया हमारा पहला पार्ट प्रूव. आल्सो वी हैव, अब हम इनको चेंज कर लेते हैं. हमने 1 की जगह 2 रखा था, अब हम 2 की जगह 1 रख लेते हैं. तो मेरे पास आ जाएगा 1 + 1 प्लस और उसकी जगह हम रख देते हैं 3 = 4 है. तो 4 + 4, 6 की जगह भी हम 5 ले लेते हैं और 7 की जगह हम 8 ले लेते हैं. 8, 360. उसी तरह ये हो जाएगा 2 × 1, 2 × 4, 2 × 5, 2 × 8 is equal to 360. So taking 2 common, 1 + 4 + 5 + 8 is equal to 360. अब 2 उधर चला जाएगा. 1 + 4 + 5 + 8 is equal to 360/2, 180. अब देखिए 1 + 1 + 8 इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं. 1 + 8 + 4 + 5 is equal to 180. 1 + 8 मिलके एंगल AOD बना रहा है और ये एंगल BOC is equal to 180. Thus we have proved, हमने प्रूव कर दिया. क्या प्रूव कर दिया हमने? एंगल AOD प्लस एंगल BOC 180, एंगल AOB प्लस एंगल COD इज 180. तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हमारी एक्सरसाइज 10.2 का. कल नया चैप्टर आपके लिए सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर. हैव अ नाइस डे.